Hello all, welcome to the new session. So in this session we are going to discuss about the Q learning algorithm. This algorithm we are using for implementation of reinforcement learning. Basically we are using two algorithms to implement the reinforcement learning. First one is a learning algorithm and second one is a deep neural network algorithm. So now here in this session we are going to only discuss about the Q learning, or we can say the Q learning algorithm. So we already had a detailed discussion about the reinforcement learning, like what is reinforcement learning, how we can implement the reinforcement learning, what is state, what is value, what is we can say policy or reward, and all these terms related to the reinforcement learning. All are we already had discussed in our previous 3-4 sessions related to the reinforcement learning, right? So here now this is the last uh, uh, point related to the reinforcement learning if we are considering the unit number 5th. So in unit number 5th there is a last point, that is Q learning. So now in this session we'll discuss this point, and then we'll start the session that is related to the deep learning, right? So let's start the today's session, which is related to the Q learning algorithm. So again here these are the some important point related to the Q learning, or we can say the Q learning algorithm. So first we'll discuss this point, then we'll move towards the detail about the Q learning algorithm, how Q learning algorithm works, and we'll see the examples like how Q learning algorithm works, what are the different applications, right? So here you can see the first point, that is Q learning is a popular algorithm used in the field of reinforcement learning, which is type of machine learning, right? सो हमने मशीन लर्निंग के टाइप्स देखे थे, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट. So basically now we know about the reinforcement learning, right? Now in case of this reinforcement learning, if we have to implement this reinforcement learning, we are using this Q learning algorithm, right? So this is the popular algorithm used in the field of reinforcement learning, right? Second point is reinforcement learning is all about the training an agent to make a decision in an environment in order to maximize the certain rewards, right? So as we know, the reinforcement learning is all about the positive feedback, or all about the feedback, right? Whenever this robotic agent uh, perform a good task, he will get the positive reward, and whatever bad action he is performed, he will get the negative reward, right? So here in this Q learning algorithm is all about the make a decision is an environment is maximize the certain award. So whatever this agent is there, that agent is always try to maximize the positive rewards, right? So ये आप यहाँ पे मैंने एक इमेज मेंशन करने की कोशिश की, जिससे ये जो एजेंट है, ये मान लो एक रोबोटिक एजेंट है, ये इन्वायरमेंट सेंस करके इसमें से जो भी सिचुएशंस है उससे वो पॉलिसी डिसाइड करके उसके जो फ्यूचर एक्शंस है वो करते जाएगा, राइट? और जो भी फीडबैक इन्वायरमेंट से आएगा उसके अकॉर्डिंग वो उसे लर्न करता जाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो उसे एक्शंस परफॉर्म करते जाएगा, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू लर्निंग एल्गोरिथम, राइट? आपको एक बार फिर से बता दूं, reinforcement learning is all about the agent make a decision in an environment order to maximize the certain reward, right? So this is about the reinforcement learning, right? So reinforcement learning में जो algorithm Q learning जो algorithm यूज होता है उसका भी काम वही है कि to maximize the reward, right? और डिटेल में हम इसे देखते हैं. In Q learning, the agent learns by interacting with the environment and making a decision based on the current state is in it is in, right? मतलब वो इन्वायरमेंट को सेंस करके इंटरैक्ट करके एक जो गुड डिसीजन है वो परफॉर्म करता है, और उसके बेस पे जो भी करंट सिचुएशन उसके ऊपर आएगा जो वो सेंस करेगा उसके हिसाब से वो फ्यूचर डिसीजन लेता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू लर्निंग, राइट? और इसी तरीके से जो आपका क्यू लर्निंग एल्गोरिदम है वो वर्क करता है, और इसी तरीके से आपका जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग का जो टाइप है वो वर्क करता है, राइट?
So this is related to the one important point related to the Q learning, right? Again, next point is the environment provides the feedback in the form of reward और penalties based on the agent's action. सो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट से जो भी वो एक्शन परफॉर्म करेगा इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर उसके अंदर, उसके एक्शन के रिलेटेड उसे फीडबैक्स मिलेंगे. जैसे मान लो पॉजिटिव रिवॉर्ड्स अगर मिलता है तो वो इसका मतलब ये है कि वो जो स्पेसिफिक एक्शन है वो उसे कंटिन्यूसली करते जाना है, क्योंकि वो वही एक्शन कंटिन्यूसली करते जाएगा क्योंकि उसके पॉजिटिव फीडबैक उसे मिल रहा है, राइट. बट अगर वो कोई निगेटिव एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके लिए उसे पेनल्टीज भी मिलती है जो कि वो अवॉइड करता है, राइट. सो अगेन this is again one important point related to the Q learning, right. The goal of the agent is to learn the best action to take in each state to maximize its cumulative reward over the time, right. So इस तरीके से जो पॉजिटिव रिवॉर्ड्स है वो कलेक्ट करते जाना और जो एक कम्युलेटिव जो भी रिवॉर्ड का जो नंबर है वो बढ़ाते जाना, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यू वैल्यू. वो हम डिस्कस करेंगे जब हम पूरा क्यू लर्निंग एल्गोरिदम देखेंगे. तो बेसिकली इसमें कुछ 2-3 टर्म्स है जो आपको याद रखना है, जैसे क्यू टेबल और क्यू वैल्यू, राइट. तो वो क्या होता है जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यू टेबल, राइट. सो हियर दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द क्यू लर्निंग एल्गोरिदम. नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट. सो हियर क्यू लर्निंग uses a table called as Q table to store the expected reward for each possible action in each state, right. So basically the Q table is nothing but the collection of rewards, right. जो मान लो जो भी एजेंट है उसको जिस तरीके से रिवॉर्ड वो मिल रहे हैं ना, वो रिवॉर्ड का कलेक्शन उस क्यू टेबल में होगा. जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर वो मतलब अगर अपवर्ड साइड जाता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मिल रहा है तो ये एक पॉजिटिव रिवॉर्ड पॉइंट हो गया. उसके बाद अगर वो नीचे जाता है निगेटिव रिवॉर्ड पॉइंट, तो ये क्यू टेबल होगा ना उसमें ये जो सारे रिवॉर्ड्स का जो कलेक्शन होगा ना उसका पूरा का पूरा जो नंबर हो गया ना वो इसमें होंगे क्यू टेबल में, राइट. सो क्यू टेबल टू स्टोर द एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड फॉर ईच पॉसिबल एक्शन, मतलब हर एक एक्शन के लिए उसे क्या रिवॉर्ड मिले हैं पॉजिटिव और निगेटिव, सारा का सारा जो स्टोरेज होगा वो क्यू टेबल में होगा, राइट. सो इनिशियली द क्यू टेबल इज एम्प्टी एंड द एजेंट एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट बाय टेकिंग द रैंडम एक्शंस. मतलब इनिशियल स्टेट में जब भी एजेंट जो भी है उसने अगर कोई मूवमेंट नहीं किया है, उसने अगर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया है, तो इनिशियल स्टेज में द क्यू टेबल इज एम्प्टी. मतलब ये जो सारे जो जगह है, ये जो सारी वैल्यूज़ है यहाँ पे 0-0 रहेगा इनिशियल स्टेज में. जैसे जैसे वो एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करेगा उसी तरीके से वो एक्शन परफॉर्म करेगा, और जैसे जैसे वो एक्शन परफॉर्म करते जाएगा इस टेबल में वैल्यू आती जाएंगी. उसके बाद वो कम्युलेटिव रिवॉर्ड एक नंबर क्यू टेबल मिलता है और उसके बेसिस पे वो उसका जो लर्निंग है वो कंप्लीट होता है, राइट. So next point is at it explore it updates the queue table based on the reward it's received. जैसे एक्सप्लोर कर लिया इन्वायरमेंट और जैसे जैसे एक्शन करेगा बेस्ड ऑन दैट एक्शन बेस्ड ऑन गेटिंग द रिवॉर्ड्स, सो जो क्यू टेबल है वो अपडेट होते जाएगा. मैं आपको क्यू टेबल का भी एक एग्जांपल बताऊंगा कि वो किस तरीके से रहता है, ठीक है. द की आइडिया इन क्यू लर्निंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू वैल्यू, राइट. सो अगेन हियर Q value is again one important term related to the Q learning algorithm, right. So ये हो गया Q table और उसमें से जो maximum cumulative value मिलेगा Q का उसे बोलेंगे हम Q value, right. So the Q value represent the expected cumulative rewards for taking the particular action in a given state. मतलब एक तरीके से एक maximum value होगा जो कि उसे हर एक पॉजिटिव एक्शन के लिए मिला होगा, ठीक है. उसके बाद द एजेंट अपडेट द क्यू वैल्यू फॉर अ स्टेट एक्शन पेयर यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट द क्यू वैल्यू, हियर देयर इज अ वन मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग दिस क्यू वैल्यू. इन दिस क्यू वैल्यू वी आर कंसिडरिंग द स्टेट एक्शन पेयर. स्टेट क्या है, सिचुएशन क्या है और उसके लिए एक्शन क्या लिया है, उसके लिए आपको क्या रिवॉर्ड मिला है. सो by using this state action pair we can calculate the Q value, and for calculating the Q value
this is the mathematical equation. You can see, so new q, that is s comma a, s means state and this is the action. So here this s stands for state and this a stands for action, right? So this is the state action pair. So you can see these are the different, we can see the bifurcation of this mathematical formula. So here न्यू क्यू वैल्यू फॉर द स्टेट एक्शन पेयर, तो ये न्यू क्यू वैल्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो इसके लिए न्यू क्यू इंटू द ब्रैकेट एस कॉमा ए इज इक्वल टू क्यू इंटू द ब्रैकेट एस कॉमा ए. सो दिस इज द दीज टर्म इज नोन एज अ करंट क्यू वैल्यू. जो करंट उसका जो पोजीशन है उसमें जो उसने क्यू वैल्यू मिला है वो करंट क्यू वैल्यू रहेगा. उसके बाद दिस इज लर्निंग रेट, दिस अल्फा इज नोन एज अ लर्निंग रेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हाइपर पैरामीटर. हमने इसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के जब हमने डिस्कस किया था तब हमने इसे अल्फा या फिर ये जो ग्यामा है ये सारे हो गए, ये हाइपर पैरामीटर्स यूज किए हैं. ठीक है. सो दिस इज द लर्निंग रेट, राइट. अगेन हियर आर इंटू एस कॉमा ए. सो रिवॉर्ड फॉर टेकिंग एन एक्शन इन ईच स्टेट. सो हियर दिस कैपिटल आर इज स्टैंड्स फॉर द रिवॉर्ड्स, राइट. सो उसे क्या रिवॉर्ड्स मिला है उसका वैल्यू रहेगा. अगेन हियर डिस्काउंट रेट, दैट इज गैमा. अगेन दिस इज द हाइपर पैरामीटर, राइट. अगेन दिस इज द मैक्सिमम क्यू वैल्यू, दैट इज मैक्सिमम एक्सपेक्टेड फ्यूचर रिवॉर्ड्स minus here current q value, right. So this is basically, this is the mathematical formula for calculating the new q value, right. So इसके हम ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाने वाले हैं. अगर आपको मैथमेटिकल इंट्यूशन इसके पीछे का देखना है तो आप अदर रिसोर्सेस यूज कर सकते हो. But here this is the formula we are using for calculating the q value, right. In this q value we are looking for the state action pair, right. Now next, so the agent continues to explore and update the q table until it converges the optimal value. ये देखो ये एक है q टेबल, राइट. इस क्यू टेबल में आपको ये देखो नंबर ऑफ वैल्यूज दिख रही है, +1 -1 +1 -1, मतलब फॉर ईच गुड एक्शन द एजेंट विल गेट द +1, राइट. और हर एक बैड एक्शन के लिए उसे -1 मिला है, राइट. सो ये इस तरीके से ये जो अब क्यू टेबल है ना वो कंटिन्यूअसली अपडेट होगा. कब तक? जब तक उसे ऑप्टिमल वैल्यू नहीं मिल जाता क्यू का, राइट. वंस द क्यू टेबल हैज बीन लर्न, द एजेंट कैन यूज इट to select the best action in each state by choosing the action with the highest q value. फिर इसके बाद जब ये पूरा टेबल लर्न हो जाएगा तो जब नेक्स्ट एक्शन उसे जब परफॉर्म करना होगा एक्चुअल जब आप टेस्ट करोगे तब जो बेस्ड ऑन दिस हाईएस्ट क्यू वैल्यू जो एजेंट है ना वो उसका पाथ डिसाइड करेगा या फिर उसकी एक्शन डिसाइड करेगा. अभी जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे ये एक एजेंट है, ठीक है, और ये है अल्टीमेट गोल, मतलब इसको इस एजेंट को यहाँ पे रोबोटिक एजेंट को इस गोल पे पहुंचना है, ठीक है. तो अगर ये इस पोजीशन में है तो यहाँ पे ये कौन से एक्शन परफॉर्म करेगा ताकि ये इस गोल की तरफ बढ़ सके या फिर पहुंच सके, ठीक है. तो यहाँ पे 3-4 सिचुएशन है, या तो अपवर्ड जा सकता है, या तो लेफ्ट साइड जा सकता है, राइट साइड जा सकता है, या फिर डाउनवर्ड जा सकता है, ठीक है. तो अभी देखो जैसे ये अल्टीमेट गोल है, मतलब उसे यहाँ पे पहुंचना है. तो अगर ये जो एजेंट है ये अगर लेफ्ट साइड जाता है तो ये गोल से दूर जा रहा है, मतलब जहाँ पे इसे पहुंचना है जो इसका अल्टीमेट गोल है उस जगह से वो दूर जा रहा है. तो ये -1 इसे मिल रहा है, दैट इज निगेटिव रिवॉर्ड्स. तो इसका मतलब ये है कि उसे इस साइड नहीं जाना है. तो अगर ये निगेटिव रिवॉर्ड इसे मिलेगा तो वो इस साइड नहीं जाएगा, राइट. फिर वो ये एक ट्राई करेगा कि भाई वो नीचे जाएगा, तो नीचे भी जाएगा तो वो गोल से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है. अगर वो राइट साइड लेता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रिवॉर्ड मिला, क्योंकि वो जो गोल है जहाँ पे उसे पहुँचना है उसके वो करीब पहुँच गया, राइट. उसी तरीके से अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर भी प्लस मिलेगा क्योंकि वो फिर से यहाँ पे पहुँच गया. तो अभी यहाँ पे अगर मान लो वो आ गया और यहाँ से फिर से उसने यहाँ पे लिया तो यहाँ पे -1 मिलेगा, और यहाँ से अगर यहाँ पे जाता है तो फिर से +1 मिलेगा. सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना वो लर्न होगा पहले, and based on this full table, based on this table we'll get the maximum highest q value by using this mathematical equation. और उसके बाद आप ये पूरा जो अल्गोरिदम है, ये जो पूरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक है वो इसे आप यूज कर सकते हो.
ये जो टेबल आपने लर्न किया उसके बेसिस पे ये जो एजेंट है वो वहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेगा या फिर वो पाथ ढूंढने की कोशिश करेगा स्टेट एक्शन पेयर, राइट. सो दिस इज अबाउट द क्यू टेबल and Q value, right. Last one is the after the several iteration of exploration and updating, the Q table will start to reflect the learned reward for different state and action pair, right. So वही है ये आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब ये कंटिन्यूसली नंबर ऑफ इटरेशन करने के बाद ये जो पूरा क्यू टेबल बन जाएगा तो वो उसे दिखाएगा मैक्सिमम क्यू वैल्यू, और उसमें वो डिफरेंट स्टेट एंड एक्शन पेयर का लोकेशन भी बताएगा, राइट. द रोबोट विल ग्रेजुअली लर्न विच एक्शन लीड्स टू द हायर रिवॉर्ड एंड मूव क्लोजर टू द टारगेट, राइट. सो ये जो रोबोटिक एजेंट है वो यही क्यू टेबल फॉलो करके वो हाईएस्ट रिवॉर्ड जिसे जहाँ पे मिलेगा वो पाथ चूज करते जाएगा और वो टारगेट की तरफ पहुंचने की कोशिश करेगा, राइट. सो दिस इज अबाउट द क्यू लर्निंग algorithm which is used for the implementation of reinforcement learning, right. important क्वेश्चन है, इसके ऊपर आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द क्यू लर्निंग और डिफरेंट टर्म रिलेटेड टू द क्यू लर्निंग लाइक क्यू टेबल, क्यू वैल्यू, और उसमें आपको फॉर्मूला भी मेंशन करना होगा, ठीक है. सो दिस इज क्यू लर्निंग एंड दिस इज द वर्किंग ऑफ क्यू लर्निंग algorithm, right. Next, right. So here this flowchart, you can see the flowchart. This flowchart represent the working of Q learning algorithm, right. So here you can see the different steps used in a Q learning algorithm to implement the reinforcement learning. Here you can see the initialization of Q table. So as we know now कि जो Q table होता है वो initially empty होता है, that means जो भी values उसमें रहेगा वो सारी 0 0 0 0 values रहेगी. So initialization of Q table, this is the first step. Then the select an action to perform, right. So action choose करना जो कि हमें perform करना है, उसके बाद perform the selected action. After choosing the action we have to perform that particular action, and after performing the action measure the reward, right. क्या reward मिला है वो measure करना, जैसे positive और negative, right. तो जो भी है वो, उसके बाद लाइक दैट जो भी रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा उसी रिवॉर्ड के बेस पे आपका जो क्यू टेबल है वो पूरा का पूरा अपडेट होगा, राइट. और क्यू टेबल अपडेट होने पे वही फिर यहाँ पे वही सेम फिर से एक्शन, मतलब नंबर ऑफ इटरेशंस करो, एक्शन चूज करो, परफॉर्म करो, रिवॉर्ड कलेक्ट करो, क्यू टेबल अपडेट होगा. फिर से वही ये जो पूरी प्रोसेस है चारों, ये रिपीटेड करो, नंबर ऑफ टाइम्स इटरेशन उसके लो, और जब तक आपका क्यू टेबल पूरा अपडेट ना हो जाए और आपको मैक्सिमम ऑप्टिमल वैल्यू जो है वो क्यू का ना मिल जाए, राइट. तभी आपका पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, राइट. सो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट. अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है आपके तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट आउट कीजिए, मैं आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा. अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.